Now we are going to start a new chapter, surface area and volumes. And here is the question number 1. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Question is very easy. And what you have to do? First, you have to find out the side of the cube. And given that volume of one cube is equal to 64 centimeter cube. Given that volume of one cube is equal to 64 centimeter cube, right? And let the side of the cube is a centimeter. If the side of the cube is a centimeter, then by the formula volume will be a cube, and a cube will be equal to 64, then a will be equal to 4 centimeter after finding the cube root of 64. Got it? Now we have calculated the side of the cube. What is given to you कि टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड. हमने दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया. तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास कोई क्यूब है, अगर आप दो क्यूब को एक साथ रख देते हो, दोनों क्यूब की साइड्स सेम है, तो क्या इफेक्ट होगा? सिर्फ लेंथ बदल जाएगी, विड्थ और हाइट सेम रहेगी. और जब आप दो क्यूब को एक साथ ज्वाइंट कर दोगे तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड. गॉट इट? और इस क्यूबॉइड में, इन क्यूबॉइड लेंथ विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगी. लाइक दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड you will get a new length which is 8 centimeter. Width will be same 4 centimeter and height will also be same 4 centimeter. What you have to calculate? Find the surface area of the resulting cuboid. Means you have to find out the total surface area of the resulting cuboid. And by formula, the total surface area of cuboid, it is equal to TSA of cuboid 2 into LB plus BH plus HL. Put values of LB and H here and calculate the volume of the resulting cuboid. Calculate yourself after putting all the values of LB and H in the formula. And answer will be in, you have to find surface area. So answer will be in square units, centimeter square. Now move on to question number 2. Read it from your book. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक वेसल है हमारे पास, किस शेप में है? hollow hemisphere, और जो माउंटेड है hollow cylinder. इसका मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक सिलेंडर को क्या रखा है? रख दिया है. लाइक वी हैव अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर हमने क्या कर दिया है? एक सिलेंडर को इस्टेब्लिश कर दिया है, जस्ट लाइक दैट. इस केस में होगा क्या? इस केस में दोनों फिगर एक तो है हेमिस्फीयर और एक है सिलेंडर. इन दोनों ही फिगर के जो रेडियस है वो सेम होगी. अब आगे देखते हैं क्या गिवन है. डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर हेमिस्फीयर का गिवन है तो यही डायमीटर किसका होगा? ये सिलेंडर का भी होगा. देन रेडियस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, 14 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13. टोटल हाइट ऑफ द वेसल इट इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी है? 7. तो यहाँ से जो हाइट होगी हेमिस्फीयर, ये होगी 7 सेंटीमीटर. तो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी? 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन हियर. गिवन दैट टोटल हाइट of the vessel, total height of the vessel is 13 centimeter and the radius of hemisphere is 7 centimeter. So if this is the radius of hemisphere, then this will also be the radius of hemisphere, and hence
So height of the cylinder, height of cylinder, it will be equal to 13 minus 7, which is equal to 6 centimeter. All these things you have to mention. Now what is to be find in the question? क्या कह रहा है? Find the inner surface area of the vessel. Inner surface area एक हॉलो हेमिस्फेयर है। ये हॉलो हेमिस्फेयर का मतलब ये एक खोखला हेमिस्फेयर है, ये सॉलिड नहीं है। जब हमने हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर को पेस्ट कर दिया तो सिलेंडर का जो सर्कुलर बेस है और हेमिस्फेयर का जो सर्कुलर टॉप है वो दोनों क्या कर दिए, हमने पेस्ट कर दिए। तो अब जब हम इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जाएंगे, किसका, वेसल का, तो वो इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सो व्हाट यू विल राइट हियर, सो the inner surface area of the vessel is equal to, so inner surface area of the vessel will be equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere, curved surface area of hemisphere. Now curved surface area of cylinder, cylinder का हो जाएगा 2 pi RH plus, and curved surface area of hemisphere will be equal to 2 pi r square, 2 pi r square, क्योंकि CSA ऑफ स्फीयर होता है 4 pi r square और CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 pi r square. Put the values here and while you are putting the values be conscious, क्योंकि यहाँ पर हाइट और रेडियस दोनों फिगर की डिफरेंट हैं। जब आप सिलेंडर की वैल्यूज को कर रहे हैं पुट, तो सिलेंडर की जो यूनिट्स होंगी वो आप पुट करोगे, एंड इफ इट इज गिवन that what value of pi you have to put in the question, then you have to put the same value. If the value is not given to you कि pi की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, then you will put the value of pi accordingly. मतलब अगर हम r देखते हैं तो रेडियस 7 है और pi की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 22/7 रखकर क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पुट पाई एज 22/7, रेडियस इज 7 एंड हाइट इज 6 प्लस 2 इंटू पाई इज 22/7 आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 7, तो 7 इंटू 7 कैलकुलेटेड, 7 कैंसल्ड and multiply and get the answer. So after calculation, answer of this question is 572 centimeter square. Let's move on to question number 3. Read it. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या कर दिया है, एक कोन को स्टैंड कराया है, माउंट करा दिया है। तो फिर से हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, से दिस इज हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर हमने क्या माउंट करा दिया है, एक सिलेंडर। अच्छा कौन है, फॉर्म ऑफ अ कोन, सॉरी कट आउट करना पड़ेगा। टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक कोन को स्टैंड करा दिया है। लेट दिस इज द कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों की रेडियस ही कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। फिर से वही केस, अगर रेडियस 3.5 गिवन है तो दिस इज ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5, इट विल बी 12 सेंटीमीटर।
the height of the cone, and all these things you have to mention. Total height of the vessel is equal to 15.5 centimeter. So height of the cone, it will be equal to 15.5 minus 3.5, 12 centimeter. What you have to calculate here? Find the total surface area of the toy. फिर से ध्यान देना कि we have to find the total surface area. तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है कि जब कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, हमारा ध्यान टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज पर चला जाता है कि टीएसए ऑफ कोन एंड टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज भूल जाते हैं कि जब हम दोनों को पेस्ट कर दिया, हमने एक हेमिस्फीयर और एक कोन को जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो कोन का जो बेस है सर्कुलर बेस, और हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर टॉप है, वो दोनों को हमने पेस्ट कर दिया। वो जो एरिया था, वो रीजन, उसको पेस्ट करने में क्या हो गया, यूज हो चुका है। अब वो वाला जो एरिया जो हमने, वो वाला रीजन जो हमने पेस्ट कर दिया, वो हमें दिखाई नहीं देगा। अब हमें जब ये एक टॉय बन गया है, एक वेसल बन गया है, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें एक तो CSA दिखाई देगा कोन का, और हमें CSA दिखाई देगा हेमिस्फीयर का। यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात तो हो रही है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। Now write down the formulas. Curved surface area of cone is pi RL, which is equal to pi RL plus, and curved surface area of hemisphere is 2 pi R square. Now here is a term L, which is the slant height, and slant height is not given to you in this question directly. तो पहले आपको slant height कैलकुलेट करनी होगी, तो उसके लिए we know the formula L is equal to under root h square plus r square. All these formulas you have studied in class 9th, chapter number 13. H height is given as 12, so 12 square plus radius is given as 3.5. Find its square. 12 square is 144, and what will be the square of 3.5? 12.25. Got it? Simplify. Under root points, decimal. Okay, add them. 156.25. Find its square root. Remove the decimal and you will get 100 in denominator. It will be equal to 125 into 125, and 100 can be written as 10 into 10, and hence the square root will be 125 upon 10, and now adjust the decimal, it will be 12.5 and centimeter. Everything is given in centimeter. So this is the value of L. Replace all the values in the formula and perform the calculation, get the final answer. Now move on to question number 4. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. Means we have a cone, cube. We have a cube of 7 centimeter. मान लीजिए ये क्यूब का टॉप व्यू है, एक क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इस क्यूब के किसी भी एक सरफेस के ऊपर, किसी भी एक फेस के ऊपर हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर क्या कर दिया, उसके ऊपर रख दिया है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर
द हेमिस्फीयर कैन हैव। सपोज ये टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ क्यूब। हमें पता है सबको कि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। क्यूब एज्यूम करो अपने माइंड में, इमेजिन करो कि टेबल पर एक क्यूब रखा हुआ है, 4 फेसेस तो हो गए, उसके हो गए लेटरल सरफेस, एक फेस हो गया जो बॉटम पर है ना बेस का काम कर रहा है, एक हो गया उसका टॉप सरफेस, टॉप फेस। टॉप फेस के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर उल्टा करके रख दिया, यानी कि हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर क्या होता है फ्लैट सरफेस, सर्कुलर सरफेस, उसको हमने ऐसे रख दिया। तो जब हम टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में हमें कैसा लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि हमने एक सर्कल को एक स्क्वायर के अंदर बंद कर दिया। कैसा लगेगा कि हमने एक स्क्वायर को सर्कल के अंदर फिट कर दिया है, मतलब एक स्क्वायर है विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। फिर से इमेजिन करो कि टेबल पर एक क्या रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज योर क्यूब, ठीक है, चॉक बॉक्स है, सपोज ये क्यूब है और क्यूब टेबल पर रखा हुआ है। मैंने घर पर एक बॉल ली, हेमिस्फीयर का मतलब एक बॉल, और उसको इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया। तो बॉल का जो फ्लैट सरफेस होता है वो सर्कुलर होगा ना, और मुझे इस तरह से रखना है कि मैक्सिमम डायमीटर ले सके, वो जो बॉल है वो अपना ग्रेटेस्ट डायमीटर अचीव कर सके। ग्रेटेस्ट डायमीटर, लेकिन वो रहना तो चाहिए टॉप व्यू के अंदर ही अंदर रहना चाहिए, ना तो छोटा होना चाहिए ना वो बड़ा होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है हेमिस्फीयर का, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ही किसकी साइड है, क्यूब की साइड है। तो डायमीटर मैक्सिमम तो हो सकता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे हमने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रख दिया, तो ऊपर से अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो टॉप व्यू विल बी लाइक दैट, गॉट इट। तो इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं, ये 4 कॉर्नर्स का एरिया हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वहां पर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब जो फिगर अब बन गई कंपोजिट फिगर, उस कंपोजिट फिगर का सरफेस फाइंड करना है। तो उस सरफेस में 4 कॉर्नर्स का एरिया भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू यू। What is the greatest diameter? तो greatest diameter will be equal to 7 centimeter. Find the surface area of the solid. तो इस तरह से जो सॉलिड बन गया है, जो सॉलिड फिगर हमें मिल रही है, उसका सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया कैसे आएगा देखिए। सो रिक्वायर्ड surface area, required surface area of the solid, it will be equal to total surface area of the cube, total surface area of cube। लेकिन हमने क्या करा, जो इसका टॉप सरफेस था, जो टॉप सरफेस था उसके ऊपर हमने जब हेमिस्फीयर को चिपका दिया, तो जो सर्कुलर रीजन था हेमिस्फीयर का वो तो पेस्ट हो गया। वो पेस्ट किसके ऊपर हुआ, वो हुआ उस क्यूब का जो टॉप सरफेस है, और जो टॉप सरफेस है वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। तो एक सर्कल का एरिया कंज्यूम हो गया इन दोनों को पेस्ट करने में। किसको पेस्ट करने में, टॉप फेस ऑफ द क्यूब और बॉटम ऑफ द हेमिस्फीयर। जब हमने उसको पेस्ट कर दिया तो वो जो सर्कल वाला एरिया था वो हमारे लिए वेस्ट हो गया। सो वी हैव टू सबट्रैक्ट पाई आर स्क्वायर, मींस बेस या बेस एरिया लिख लीजिए, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन जब हमने हेमिस्फीयर को पेस्ट कर दिया तो जो सर्कल का एरिया था वो तो खत्म हो गया, बट लेकिन उसका कर्व सरफेस एरिया तो बचा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो तो बच गया, तो वो प्लस होगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। Now put the values in the formula. Total surface area of cube 6 into a square. Let a is the side of the cube minus base area of hemisphere. Hemisphere का जो base होता है सर्कुलर होता है, तो minus pi r square. Then plus curved surface area of hemisphere which is equal to 2 pi r square. So final equation क्या बन जाएगी, 6 into side है 7 square
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर बच जाएगा प्लस, तो प्लस पाई आर स्क्वायर एंड आर रेडियस इज इक्वल टू 7। देखो रेडियस अगर डायमीटर कितना बन रहा है, अच्छा डायमीटर अगर बन रहा है 7 सेंटीमीटर तो रेडियस बन जाएगी 3.5, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। आई एम रिपीटिंग, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दे आर बेस्ड ऑन द सेम इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन सेम बनेगा। फिर से ध्यान देना, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं चॉक बॉक्स। चॉक बॉक्स है हमारे पास एक, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए ये क्यूबिकल शेप में है। अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होता है तो टोटल सरफेस एरिया में हमें इसके 6 के 6 फेसेस का एरिया कंसीडर करना होता है, और इसीलिए फॉर्मूला क्या बनता है 6a स्क्वायर। अब इसमें 6 फेसेस में से जो 5 फेसेस हैं, फ्रंट बैक, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बॉटम, यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो 5 फेस का एरिया तो हमें कंसीडर करना ही करना है। फर्क पड़ रहा है उस फेस पर जिस फेस के ऊपर हमने क्या करा, एक बॉल को रख दिया है। हम टॉप सरफेस के ऊपर एक बॉल को उल्टा कर कर रख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि वो जो बॉल मतलब एक हेमिस्फीयर है ना, बाउल मतलब हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की मैक्सिमम डायमीटर कितनी हो सकती है। तो जब मैं हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रखूंगा तो हेमिस्फीयर की मैक्सिमम डायमीटर विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। जितनी साइड है क्यूब की उतना ही मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। अगर डायमीटर 7 से ज्यादा लोगे तो वो बाहर निकल जाएगा क्यूब से, डायमीटर कम लोगे, किसका है डायमीटर, हेमिस्फीयर का, तो वो डायमीटर, वो जो हेमिस्फीयर होगा वो इसके ऊपर रखा हुआ छोटा दिखाई देगा। उस कंडीशन ये है कि मैक्सिमम डायमीटर होना चाहिए, तो मैक्सिमम डायमीटर विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, इसलिए मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। हम अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5, किसकी रेडियस, हेमिस्फीयर की। ये एक तरह से टॉप व्यू है। अब कह रहा है कि जब हमने हेमिस्फीयर रख दिया तो ध्यान से देखना कि सपोज ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर में ये जो कर्व्ड एरिया है इसके ऊपर हमने एक क्या रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया है, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर वो तो प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों फिगर को हमने पेस्ट कर दिया और एक नई फिगर बना दी कंपोजिट फिगर, वही मैंने यहां पर प्लस कर दिया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर ये क्या किया, ध्यान देना, 5 फेस का एरिया उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 6th फेस, ये जो 6th फेस है टॉप, ये स्क्वायर शेप में होता है क्योंकि क्यूब के सारे फेसेस क्या होते हैं, वो स्क्वायर शेप में होते हैं। सपोज ये एक स्क्वायर है, इसके ऊपर मैंने हेमिस्फीयर रख दिया, चिपका दिया, तो सर्कल का जो एरिया था वो तो खत्म हो गया। टोटल एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, लेकिन जब उसमें से मैंने क्या करा, एक सर्कल चिपका दिया, एक सर्कल मतलब एक हेमिस्फीयर चिपका दिया, तो वो पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया। तो मुझे एक फेस के एरिया में से पाई आर स्क्वायर को माइनस करना है, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा कि अगर मुझे शेडेड, मुझे कॉर्नर्स का एरिया फाइंड करना हो, अगर मुझे इन 4 कॉर्नर्स का एरिया फाइंड करना हो तो मैं स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया तो माइनस करूंगा ना, तो कॉर्नर्स का एरिया आ जाएगा। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 5 फेस का एरिया अलग कर लिया और जो एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, उसमें से मैंने सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी बना सकते हो कि 5 फेस का एरिया तो हो गया 5a स्क्वायर प्लस 6th फेस कैसा है, स्क्वायर शेप में है, तो a स्क्वायर, ये तो हो गया एक स्क्वायर का एरिया यानी कि एक फेस का एरिया, और उसमें से मैंने पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है, ये किसकी जगह पर आ गया है, इन दोनों की रिप्लेसमेंट। 6th फेस का एरिया एडजस्टेड, और फिर मुझे जो मैंने बॉल ऊपर रखी थी उसका कर्व सरफेस एरिया मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए या इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर अभी हमने 4 किया है ना अभी उसका बिल्कुल करेक्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन है। इसमें कह रहा है कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो एग्जैक्टली इक्वल है एज ऑफ द क्यूब। अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो ये वो पूछ रहा था कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर,
तो उसमें भी जो क्यूब की साइड थी 7 सेंटीमीटर, उतना ही डायमीटर हुआ था। वहां पर हमें अपने आप बताना पड़ा कि दैट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, और यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। चलिए फिर से वही डायग्राम जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ड्रॉ किया था। एक हमारे पास क्यूब है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, और मैं उन 6 फेसेस में से सिर्फ एक फेस ले रहा हूं, एंड दैट विल बी द टॉप व्यू ऑफ द क्यूब। साइड कितनी गिवन है? एल यूनिट। तो ऑल साइड्स विल बी एल यूनिट, क्योंकि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ क्यूब। फिर से हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा था, और अब हम क्या कर रहे हैं, हेमिस्फीयर इसमें से कट कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल शेप इसमें से कट कर रहे हैं। तो जब कट करेंगे तो फिर से वही कहानी होगी, 4 कॉर्नर्स बच जाएंगे। और जब आप टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू से आपको कैसा दिखाई देगा, ध्यान देना, सपोज कोई क्यूब है, उसके जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बॉटम पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसका टॉप, जो पहले एक फ्लैट सरफेस था स्क्वायर शेप में, उसमें से जब मैंने हेमिस्फीयर कट कर ली, तो वो जो ऊपर से दिखाई देगा वो टॉप व्यू फिर से ऐसा ही दिखाई देगा जैसे किसी स्क्वायर ने क्या कर रखा हो, सर्कमस्क्राइब कर रखा हो एक सर्कल को, कुछ ऐसे दिखाई देगा, और उसके 4 कॉर्नर्स बचे रह जाएंगे। आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि आपके पास कोई क्यूब है, और वो क्यूब शेप है, और हमने उसको एज अ बॉल स्टैंड बनाया हुआ है। तो जब हमें उसके ऊपर कोई बॉल रखनी है, जैसे लेदर बॉल होती है, क्रिकेट बॉल, अगर आपको कोई उसका स्टैंड बनाना है, और स्टैंड होना चाहिए क्यूबिकल शेप में, तो उसके 5 सरफेस जो होंगे वो तो आप फ्लैट ही रखोगे स्क्वायर शेप में, लेकिन एक फेस को तो ऐसा रखना पड़ेगा ना जिसमें बॉल फिट हो जाए। अब वो बॉल को जब फिट करने जाओगे तो वो जो फ्लैट सरफेस है वो इस शेप में कटा हुआ होना चाहिए कि वो बॉल को बिल्कुल ऑक्यूपाई कर ले, वो बॉल तभी उसमें क्या होगी, कंटेन होगी। समझ रहे हो ना? अगर वो फ्लैट सरफेस होगा तो उसके ऊपर आप बॉल रखोगे तो बॉल तो गिरती रहेगी। अगर आप 6 के 6 फेसेस को फ्लैट ही रखोगे जैसा क्यूब होता है, और उसके ऊपर आप बॉल को फिट करना चाहो, तो बॉल उसके ऊपर रुकेगी नहीं, गिर जाएगी। लेकिन अगर आप एक फेस को कट आउट कर लो, और किस शेप में कट आउट कर लो, स्फेरिकल शेप में ही कट आउट कर लो, जिससे कि बॉल जब आप उसके ऊपर रखो तो बॉल फिर हिले ना, तभी तो आप उसको बॉल स्टैंड कहोगे। तो बाकी 5 फेसेस तो आपको स्क्वायर शेप में दिखाई देंगे क्योंकि वो क्यूब है, लेकिन क्यूब का जो 6th फेस है, जो टॉप सरफेस है, वहां से आपने एक हेमिस्फीयर कट कर लिया ताकि बॉल उसमें फिट हो जाए। तो फिर से वही एक सर्कल आपने कट कर लिया। कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे आएगा? फिर सेम इक्वेशन। In this case also you have to mention all the things. I am writing only equation and do the calculation by yourself. देखो कैसे होगा। Surface area of the remaining solid, surface area of the remaining solid will be equal to 6 फेसेस का एरिया। ठीक है, या एक काम करो, अगर आपको वैसे समझ में आ रहा है ना, जैसे मैंने अभी आपको इमेजिन कराया है बॉल स्टैंड, तो बॉल स्टैंड की तरह 5 फेसेस का एरिया तो आपको कंसीडर करना है। पहले लिखो 5 फेसेस का एरिया, 5a स्क्वायर। पहले मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ, साइड ए है। सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज में मैं ए लेकर चल रहा हूँ, बाद में हम ए को रिप्लेस कर देंगे एल से। प्लस 5 फेसेस का एरिया हो गया, जो 6th फेस का एरिया है, मतलब टॉप। अब इसको ध्यान से देखो, ये एरिया कैसे आ रहा है, स्क्वायर एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये हमने क्या कर लिया, 6 फेसेस का एरिया कंसिडर कर लिया। लेकिन जब हमने वो कट आउट कर दिया, तो कट आउट करने के बाद जो टॉप व्यू है वो, उसमें मुझे एक क्या बनता हुआ दिखाई देगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मुझे बनता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं प्लस इसमें 2 पाई आर स्क्वायर और करूंगा। अब रिप्लेस कर दीजिए वैल्यूज को। 5a स्क्वायर का मीन्स साइड, a इज द साइड ऑफ द क्यूब विच इज इक्वल टू l, प्लस a स्क्वायर मीन्स फिर से l स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ये हो गया 5l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 6l स्क्वायर प्लस पाई r इज इक्वल टू, r कितना हो जाएगा, l बाई 2, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई 4। एलसीएम ले लीजिए, इज इक्वल टू 6 4 24,
एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। क्या कॉमन आ रहा है? न्यूमिनेटर में एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अपॉन 4 में अगर अलग कर लेता हूं तो एल स्क्वायर अपॉन 4 को कर लिया जाए अलग तो ये बन जाएगा 24 प्लस पाई। और ये सरफेस एरिया है और यूनिट्स इसकी गिवन नहीं है तो आप लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट्स आंसर। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। Question number 5 and question number 4, they both carry the same equation. This equation is same for both the questions. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐड किया था और इस इक्वेशन में हमने हेमिस्फेरिकल एरिया कट आउट किया है।